Welcome back to Analyst Adda. Today we will discuss the three pillars of OOPS. Okay, so I'm making the diagram here for you. The three core pillars. Okay, and it's correct. So this is the three pillars of OOPS. Okay. Sorry, pillars. Okay, so first pillar is encapsulation. Okay, this is A means encapsulation. Second is inheritance. I denote the inheritance. We'll explain each and every pillars. First, I'm making the diagram for you, so you will see the diagram first. Polymorphism P. Okay, phase. That's correct. Okay, so these are the three pillars of OOPS. Okay, first is encapsulation, inheritance, and the polymorphism. Some people added the abstraction is also, but according to me, three pillars of OOPS. Some of the people says four pillars of OOPS. That's not wrong. Okay, we can add the abstraction, but according to me, the three pillars of OOPS is the core. Abstraction is different, and we can say in the encapsulation we are overlapping the abstraction. Means abstraction is overlapping the uh, abstraction. Okay, encapsulation, because so okay, first I will explain each and everything. Okay, first encapsulation. So I can say the simply building, binding the data and the function together, data and function. Okay, data and its function together is called the encapsulation. And we can say if class demonstrate encapsulation, as it is used to define both data variable as well as the method variable, and both data and functions can be accessed through class itself. So this is called encapsulation. मैं अगर कहूँ कि एज अ लेमन लैंग्वेज में कि इनकैप्सुलेशन क्या है, एक क्लास के अंदर जहाँ पे हम डेटा वेरिएबल और मेथड दोनों डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डेटा वेरिएबल और मेथड, मेथड मीन्स जो भी डेटा वेरिएबल है क्लास के अंदर उसके फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एज अ मेथड में, तो वो क्लास के अंदर हम उसको क्या कह रहे हैं, इनकैप्सुलेशन. ओके, बाइंड कर रहे हैं डेटा वेरिएबल को और उसके फंक्शन को, इट्स फंक्शन, अदर मेथड नहीं, जो भी हमने डेटा वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसी के हमने उसका फंक्शन क्रिएट किया है, मेथड क्रिएट किया है,
उसी वेरिएबल का, जैसे हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए ए बी, ओके, हम उसको एडिशन कर रहे हैं। ए वेरिएबल डिफाइन किया, बी वेरिएबल डिफाइन किया, उसका हमने क्या किया, एक मेथड फंक्शन क्रिएट किया कि हमें इसको क्या करना है, दोनों वेरिएबल को एडिशन करना है, राइट, या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, मेथड क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, द बाइंडिंग प्रोसेस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। and the other is the inheritance, okay। then inheritance में क्या हो रहा है कि ये हम कहेंगे कि सबसे पॉपुलर फीचर्स है इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल we can say the one of the parent class and the child class. If child class inherit the property of the uh, parent class, the data and function which is defined in the parent class, or we can say the super class, can be directly used by the subclass, that is the child class. So using these features of inheritance, thus we are enabling the reuse of code which is already written in the parent class. This is called the inheritance process. मैं कह सकती हूँ जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जिसको हम सुपर क्लास कह सकते हैं, एक चाइल्ड क्लास है जिसे हम सब क्लास कह सकते हैं। पेरेंट क्लास के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किए गए, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन किए हैं, राइट, वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं सब क्लास में, चाइल्ड क्लास में, ओके। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, इनहेरिटेंस कहला रहा है। इससे क्या कर रहे हैं, हम कोड को रीयूज कर रहे हैं। क्या क्या हम उसके कोड को, जो भी पेरेंट में अंदर डिफाइन किया गया उसके कोड को क्या कर रहे हैं, हम रीयूज कर रहे हैं। तो it enables a reuse of code which is written in the parent class, okay, that is understood. And the third thing is the polymorphism. Poly or morph, which is here you can say the two words, the poly, and second is the, first is the poly and second is the morphs. Means poly means many and morph means form, okay. So we can say it implies that one single object can be used to do different tasks. Or for example, we have a simple example, I can say we have the plus operator in Java, okay, which can be used to add int, double, float, any type of values. This operator we can use in double and float. So it can also be used to concrete two strings. Thus one simple operator takes on many forms or shows polymorphism, okay। मैं हिंदी में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ बताया, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सके, ओके, एक ही ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, उसको हम प्लस ही करना है, दो स्ट्रिंग को प्लस ही करेगा, बट उसको हम अलग अलग तरीके से, कैसे, इंट के थ्रू भी हम उसको ऐड कर सकते हैं, डबल में भी ऐड कर सकते हैं, और फ्लोट टाइप में भी ऐड कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ वैल्यूज है, यहाँ हम एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, एक ही ऑपरेटर के थ्रू हम अलग अलग फॉर्म्स को फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमें क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। मीन्स हम इंट को भी एडिशन कर सकते हैं, फ्लोट को भी एडिशन कर सकते हैं, डबल को भी एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन में हम जो वेरिएबल हैं और जो उसके फंक्शन है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं एक डेटा में। तो उनको हम इनकैप्सुलेशन कह रहे हैं। यह हमें क्या दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। उस जो वेरिएबल और उसके फंक्शन की क्या दे रहा है, सिक्योरिटी। It gives us security, okay।
एंड द इनहेरिटेंस हमें क्या दे रहा है, हम उसके थ्रू रीयूज कर रहे हैं कोड को, तो ये क्या दे रहा है, रीयूजेबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म में हमें क्या दे रहा है कि हम उसके थ्रू एक ही कोड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को, राइट। तो वो हमें क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या दे रहा है हमें, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो ये तो हमारे थ्री कोर कॉन्सेप्ट हैं पिलर्स के, जो भी थ्री पिलर है ये हमारे कोर पिलर हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई कोई इसमें एब्स्ट्रैक्शन भी इंक्लूड कर लेता है, राइट। एब्स्ट्रैक्शन को हम एक अलग कोर में रखेंगे, हम इसका पिलर्स में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम एनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि एनकैप्सुलेशन का क्या है कि डेटा मेंबर और जो उसके मेथड है इट्स मैम करस्पॉन्डिंग जो भी मेथड है उसको क्या कर रहा है, एक वाइंड कर रहा है। बट यहीं पे हम एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटा मेंबर हैं, जो भी हमारे डेटा मेंबर हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और मान लो कि डेटा हाइडिंग भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा वो सिक्योरिटी पर्पज से वो उस एनकैप्सुलेशन में हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, डेटा हाइडिंग में भी क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। तो अगर एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग दोनों हम एक साथ यूज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि जो कंपोनेंट जो भी फॉलो करेगा, डेटा हाइडिंग भी और एब्स्ट्रैक्शन भी, तो उसको हम बोलेंगे कि एनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट। ओके। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन को, क्योंकि इनकैप्सुलेशन भी हमें सिक्योरिटी दे रहा है, और वही सिक्योरिटी हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि प्राइवेट डेटा हाइडिंग में जैसे हम प्राइवेट करते हैं डेटा मेंबर को, तो हम प्राइवेट अगर डेटा मेंबर कर दिया और उसके उससे साथ में हम एब्स्ट्रैक्शन भी यूज कर लिया है कि हमने एब्स्ट्रैक्शन में मतलब जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस यूज कर लिया है, और या फिर हमने क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस फॉल यूज की हैं साथ में उस क्लास को क्रिएट करने के लिए, एनकैप्सुलेटेड क्लास को यूज करने के लिए, तो वहाँ पे वो कंपोनेंट कैसा कहलाएगा, एनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट, दोनों यूज कर रहे हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन ही ओवरलैप कर रहा है आपके एब्स्ट्रैक्शन को। तो वो हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन भी पिलर्स होगा ऊप्स का। बट अगर इंटरव्यू पीपल अगर आपसे पूछते हैं तो हम उसको एड ऑन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन, बट मेन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इनकैप्सुलेशन होगा। इनकैप्सुलेशन के अंदर जो सिक्योरिटी है वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन को इनकैप्सुलेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन को हम अलग से पिलर्स में नहीं डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो मेन जो पिलर्स है वो तीन ही होते हैं, हम उसको एड ऑन कर सकते हैं कि हाँ एब्स्ट्रैक्शन भी हमने एड ऑन कर दिए कि एब्स्ट्रैक्शन भी है। बट थ्री पिलर्स कौन कौन से हैं, EIP, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर दी थ्री पिलर्स ऑफ ओप्स। ओके, मैं आगे इनको अलग अलग इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सबको एक अलग अलग डिटेल में जाऊंगी, एक एग्जाम्पल सबके अलग अलग विद प्रोग्रामिंग के साथ एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या, और आगे इसके बेनिफिट और इसके क्या क्या कैसे कैसे हम यूज करेंगे क्लासेस में। ओके, क्लासेस में, इंटरफेसेस में। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इनकैप्सुलेशन को लेके आऊंगी, इनहेरिटेंस फिर पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पूरे डिटेल में सब समझाऊंगी। ये ओवरव्यू क्लास थी इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इन डिटेल में अलग अलग मैं इसके क्लास लेके आऊंगी। ओके, आज के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।